The panel coming up next is a very, very interesting panel for everybody present over here. It's about music. So, the first guest of this panel, I would like to call upon the stage, so Mr. Brahmanand S. Singh, sir. Please come on the stage, sir. Sir is an award-winning filmmaker and writer based out of Mumbai. He's best known for his film, Kagaz Ki Kashti, which is the biopic of the legendary Sir Jagjit Singh. He has taken off and all set to release. And he's also a national winning award. So he is a national award winning filmmaker, author, speaker, known for his meaningful feature films and documentaries. And please put your hands together for him. Now I would request Rahul Seth sir to be on the stage. Give a round of applause for him. Rahul Seth sir is a profile musical composer, lyricist, writer, singer and a voice actor. He has also happened in the nephew of an acclaimed author, Vikram Seth. He has also won Dada Saheb Phalke Jury Appreciation Award for his music short film. Give a round of applause for him. Also, I would like to call Mamta Mandal ma'am on the stage for the moderation. You're the angel in my dreams I see. I wanna be with you forever and ever. You're the angel that I need, who makes me so complete. Don't wanna be without you never. Beauty and grace, visions of your smiling face, dazzling up my nights and days. I can feel it in your eyes. I can see that you're my life. Won't you show me your feeling? Why do you leave me dreaming, dreaming about me and you? Hey, zindagi gale laga le. Hey, zindagi gale laga le. हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना. ऐ जिंदगी गले लगा ले. तैनू मिर्जा जट ने आख दे ते तू रांझा नहीं फकीर. जे कोई तैनू चोरी ले जावे, नी तू साहिबा नहीं तू हीर. ये हुस्न तेरा है आग आग, आशिक दिल बच कर भाग भाग, वरना तू जल जाएगा. हो जाएगा सब खाक खाक, रह जाएगी बस राख राख जिस दिन तू जल जाएगा. सुन ले कल को सोनिए, मखना की तोड़िए, मेरे पास आ जाना, कर ले प्यार 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 प्यार. Oh my baby you're soft, won't you show me what you got? Get your body grooving now, keep it going on and on and on and on. Certain emotions are just like a shadow hovering around you, just can't do nothing about it. That's a reality that you gotta know about you and me. No matter what the distance be, I'm for you and you for me. Good afternoon, everyone. Thank you for being here with us today. Thanks to Brahmanandji and Rahulji for sparing time on the Sunday afternoon for talking about things they are passionate about. So I hope you will enjoy the session as much as I will do, and it will be a big learning for me as an audience and non-literate in music to understand how music and songs impact Indian cinema. We've had a full discussion with Vijay Nagarkar ji and Piyush Roy ji yesterday with a different perspective, but I'm sure with personalities like you who have both singing and directorial and life dedicated towards musical films, I would like to ask Brahmanandji, how do you see the songs have changed over the years, and how important is good lyrics or poetry for a good song? So even today, good lyrics are being written. There are wonderful writers around. And whenever a good lyrics gets written, a good song gets composed, it does have its impact, its
touching your heart bit. What I find different from the earlier era, and it's not because they are older songs, you know, and so we have heard it so many times. We have heard the newer songs also many times, but we don't remember the newer songs as much as we do the older songs. So there was something in the way it was composed, the singability, the hummability, and the simplicity of lyrics. Simplicity of lyrics with some very profound thoughts and ideas. I feel that the kind of shayars that we had, the film lyricists that we had, we do still have Guldar Sahab, we have Javed Akhtar Sahab, we have Swanand Kirkire, we have 3-4 others who continue to write brilliant stuff. But somehow the picturization, the meter, the overall positioning of it in the films, that has suffered. I don't know for what reason. Maybe the attention span of the youngsters, maybe the ability to think a little more, you know, than what we are prepared to do today. These could be factors, but the quality and the frequency has definitely gone 1/10 or 1/20th or 1/50th of what it used to be. Earlier, if you take a look at songs up to 70s to बहुत ही ज़्यादा 80s, sometimes 90s also, you would find that 1 or 2 songs at least in every film, and sometimes all 5 songs, 6 songs. We rarely have song albums today, film albums today, where all 6 songs are huge hit. I think last that must have happened is probably Tal, or you know, something like that, where all the songs are, in spite of people like Shankar Ehsaan Loy composing, Shantanu Moitra composing, or Parinita might have been the last, yes. Dil Chahta Hai, Guldar Sahab composing, you know. In spite of them composing, but वो दौर चला गया जहाँ पे हर फिल्म के 6 गाने हैं और 6 के 6 वो absolutely creme de la creme songs निकलेंगे. तो कहीं ना कहीं it shows the mindset of people, the kind of target audience. Yes, the audience that has happened. Let us hear from Rahul what he has to say. Yes. Rahulji, I'll like you to build upon the same thing but not repeat what you already said, what we have missed and what we are supposed to look ahead. So further elaborating on what Brahmanand ji spoke about, very, very truly and very rightly said that जो एक स्तर था पहले गानों का, चाहे वो लेखन हो, लिरिक्स राइटिंग हो या कॉम्पोजिशन हो, वो स्तर मैं ये नहीं कहूँगा कि गिर गया है, लेकिन उस स्तर को उस तरह का बैलेंस अब नहीं मिल रहा जैसे पहले मिलता था, क्योंकि एक से एक नायाब शायर राइटर थे. सो यू नो देयर वाज अ कंपटीशन अमंगस्ट एक्सीलेंस. So when, you know, there's a competition amongst excellence, every work that will come out will be excellent. यहाँ पे क्या है, अब हो गया है कि there is a lot of mediocrity also floating in name of music and stuff like that. सबसे बड़ी जो चीज़ है, because quality, चाहे वो lyrics हो, चाहे singing हो, वो quality होना बहुत ज़रूरी है. जैसे अब lyrics की बात करते हैं, पहले क्या होता था कि lyrics writing was assigned to professional lyricists जो वाकई में शायर थे, जिनको समझ थी पोइट्री की, उर्दू, हिंदी, और जो कि शब्दों को पिरोना जानते थे सिचुएशन के मुताबिक और आपके गानों के मुताबिक. अब क्या हो गया, जब से रील कल्चर आ गया है तो सबको लगता है गाना लिखने में कौन सी बड़ी बात है, तुकबंदी तो करनी है, तो हम तो कुछ भी लिख सकते हैं. तो पहले ग्रामर जो होता था ना, उसमें किलो भर ग्रामर होता था, और आज के ग्रामर में 50 ग्राम ग्रामर भी नहीं है. ठीक है, थॉट्स एंड इमेजेस जो लेकर के आते थे, वो कहीं ना कहीं बहुत कम हो गया. ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट लेट्स से अ सॉन्ग लाइक वक्त ने किया क्या हंसी से तब, मतलब हर किसी को मालूम है गाना, और कोई भी शायद 20 साल का हो तो मालूम नहीं है, बट इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड इवन 2% इन म्यूजिक, बाय द टाइम दैट पर्सन इज 25-30, दे वुड हैव हर्ड दिस सॉन्ग 20 times, 100 times, 200 times. Now
कितने छोटे छोटे लिरिक्स हैं उसके, कैफी साहब का है, वक्त ने क्या क्या हंसी से तुम रहे न तुम हम रहे रहना, एंड इवन द स्टैंजाज बहुत छोटे 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 स्टैंजाज हैं. बेकरार दिल इस तरह मिले जिस तरह कभी हम जुदा न थे, तो तुम भी रुक गए हम भी रुक गए बीच राह में चल के 2 कदम. इनफैक्ट आई थिंक इवन गोइंग, ये तो हम बहुत पुरानी बात कर रहे हैं, कमिंग टू द रीसेंट वंस जो विद द यंगस्टर्स वाज रिलेट टू अ सॉन्ग लाइक कल हो ना हो का हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी. व्हाट अ ब्यूटीफुली रिटन थॉट, सच अ नाइस मैसेज. यही एक मैसेज पे एक पुराने गाने में था कि जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना. तो गाते हैं, थोड़ा गा के नहीं बाद में. अच्छा, गाने के अलावा एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, जैसे मैंने आपको ये ग्रामर वाली बात कही थी कि समझ. अब क्या होता है, लोगों को आज की डेट में लोगों को लगता है कि भाई हमें तो आता है सब, तो हम अपनी समझ से जो भी लिखेंगे वो तो आला दर्जे का होगा, वो तो 100% करेक्ट होगा. प्रॉब्लम ये है, 2 किस्म के लोग हैं. वो जो जानते नहीं, जो ज़्यादा जानते नहीं, दूसरे वो जो ये मानते नहीं कि वो ज़्यादा जानते नहीं. तो वो दूसरी कैटेगरी ज़्यादा खतरनाक होती है. एक छोटा सा उदाहरण के लिए एक छोटा सा एक वॉइस किट आपको पेश करता हूँ जिसमें आपको एक बात क्लियर होगी. एक मैंने हाल ही में एक कैरेक्टर क्रिएट किया था, चिम्मन चाचा. अब चिम्मन चाचा की खासियत ये है कि वो अपने आप को बहुत ही सड़क से आना समझते हैं. सड़क से आना, स्ट्रीट स्मार्ट. वो कहते ही कि मैं सड़क से आना हूँ. तो अब हर चीज़ का उनके पास जवाब है, तो उनके पास कोई भी आता है कुछ पूछने तो वो जवाब देते हैं अपने तरीके से, अपने समझ से. उनका जवाब सही है, लेकिन वो कितना लाजमी, कितना लागू है वो है. जैसे कोई आए उनके पास, उन्होंने बोला, अरे चिम्मन चाचा, हमने सुना है कि आप इंग्लिश बहुत अच्छा बोलते हैं. अब चिम्मन चाचा, इंग्लिश? अरे इंग्लिश तो हमारे खानदान में पूछता ही नहीं है. कब से हम तो इंग्लिश में बहुत महारथी हैं भाई. पूछो तुम्हारे पूरे सवाल का हम एक शब्द एक वर्ड में आंसर दे देंगे. अच्छा, अरे वाह वाह. अच्छा, तो एक बात बताइए चिम्मन चाचा जी, अगर हमें इंग्लिश में कहना है कि लड़की नीचे खड़ी है तो कैसे कहेंगे? लड़की नीचे खड़ी है, लड़की नीचे खड़ी, लड़की. अरे तो बहुत सिंपल है बरखुरदार. सुनो, चिम्मन चाचा को चैलेंज करते हो. सुनो, लड़की नीचे खड़ी है ना. मिस अंडरस्टैंडिंग, लड़की नीचे खड़ी है. हो गया कि नहीं? अब ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है चिम्मन चाचा की, यही मिसअंडरस्टैंडिंग आज के दौर में चल रही है कि लोगों को जो लगता है कि हमने जो सोचा है वो सही है. चिम्मन चाचा भी सही थे अपनी जगह, लेकिन प्रॉब्लम यही है. मैंने हाल ही में एक गाना सुना, सुपरहिट गाना है, मैं नाम नहीं लूंगा किसका क्या है, मिलियंस ऑफ व्यूज. एक लाइन सुनी उसमें कि नींद वींद आते नहीं. मुझे लगा 2 भाई हैं नींद वींद के नाम के, उनको बुलाया जा रहा है, वो आ नहीं रहे. वो उसी में आगे लड़की बोलती है कि तेरे क्या, कि दिन रात तेरा नाम का माला जप रही हूं. कितना बड़ा ग्रामर में इसमें, मतलब वही 25 ग्रामर है इसमें. पॉइंट इज, इस तरह के गाने और भी कितने गाने हैं जिसमें ग्रामर ही गलत है और वो गाने सुपरहिट होते हैं. तो प्रॉब्लम इसमें यह है कि जब हम यंग जनरेशन के सामने जो लोग गाने सुनते हैं उनको लगता है कि इस तरह की बोली भी ठीक है, ये ग्रामर भी चलेगा क्योंकि वो चलती फिरती लैंग्वेज को यूज़ करते हैं. तो एक ज़माने में क्या होता था, लर्निंग, हम लोग सब जो बड़े हुए हैं, हम लोग सुन के देख के बड़े हुए हैं, तो हमने किसी तरह सीखा है सही उच्चारण क्या होता है, सही ग्रामर क्या होता है. ये हमने गाने सुन के, फिल्में देख के, डायलॉग सुन के सीखे हैं. तो वो जब तक सही नहीं होंगे, जो हमारे कान में जो आएंगे और जो हम सुन के बड़े होंगे, वही हमारी पर्सनालिटी, हमारी शख्सियत को बनाएगा. आजकल के जनरेशन अगर वो गलत ग्रामर सुनेंगे, जो चलती फिरती भाषा कुछ भी, तो दे विल थिंक ओके दिस इज लेजिटिमेट, तो हम बात भी ऐसे कर सकते हैं. सो दैट काइंड. नहीं तो उसका तो मतलब लाइक जब शॉर्ट मैसेज सर्विसिंग जब आया था तो स्पेलिंग्स वेंट फॉर अ टॉस, नोबडी बॉदर्ड अबाउट स्पेलिंग, राइट. सो इट्स I'm okay with accepting certain change in times because that is how younger generation. But what I would wish is that
human beings, intelligence, sharpness, you still have bright people who go for it, but वो percentage बहुत कम हो गया. That is the sad thing. And the point is, like he said, there are a lot of these youngsters who don't want to invest their time in learning the right thing also. जैसे चिम्मन चाचा हैं, उनको लगता है जो उनको पता है वही सही है और वही नॉलेज भेजेंगे हर जगह. Rahul ji, I'd like to just add another question to this whole thought process कि ग्रामर जा रही है, कंटेंट पे काम नहीं हो रहा है, लिरिक्स डाइल्यूट हो रहे हैं और नेक्स्ट जनरेशन कनेक्ट नहीं कर पा रही है अच्छी भाषा से, तो ये जिम्मेवारी किसकी है? बहुत बड़ा क्वेश्चन है. हाँ, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बट आई पर्सनली फील दैट जिम्मेदारी हमारी है. जिम्मेदारी हमारी है कि हम किसी न किसी तरह से स्कोप बनाए, चाहे वो क्लब्स में हो या स्कूल्स में हो या कॉलेजेस में हो या लिसनिंग सोसाइटीज़ में हो, जहाँ पे अच्छा गाना क्या होता है, सेंसिबल गाने क्या होते हैं. एंड इट्स नॉट कि सेंसिबल गाना मीन्स ओनली फिलॉसफी, यू नो, वो नहीं है. मतलब आप सिचुएशन ले लो, और एंड आवर फिल्म सॉन्ग्स आर फेमस फॉर सिचुएशंस, राइट. तो यह है बम्बई मेरी जान ले लो, ठीक है. वो उसमें जितने वर्ड्स हैं, it gives you a smile, it has a certain irony and it has a debate also, it has a perspective. जब वो बोलता है कि जॉनी वॉकर के जो लाइन्स हैं वो सब हैं कि सभी चोर हैं, सभी डकैत हैं, सभी ये हैं, वो हैं, ऐसा. बट जो गीता दत्त वाला जो रिपार्टी आता है वो ये है कि जो है करता वो है भरता है यहाँ का ये चलन, तजबीर नहीं जलने की यहाँ, यू नो, ये है बम्बई मेरी जान. तो शी पुट्स इनटू पर्सपेक्टिव कि नहीं, ये सब वो जो तुम बोल रहे हो ये ऐसा नहीं है कि जो यहाँ काटे गले कहे बिजनेस, कहे इसको बिजनेस, ओके, वो सब है. मगर जो यहाँ का दस्तूर है कि जो है करता वो है भरता, जैसा तुम करोगे वैसा. सो there's a debate going on and it's fun. That song was a positive debate. It's fun, but there's a perspective and it's being said, you know. I just want to compare songs, let's say. और ऐसा नहीं था कि पुराने ज़माने में नॉनसेंस लिरिक्स नहीं होते थे, 50 होते थे, मगर क्रेजी किया रे, क्रेजी किया रे, क्रेजी किया रे, क्रेजी वैरायटी भी है, क्रेजी किया रे, ओके. सो मतलब वेरिएशन भी है ऐसा, क्रेजी किया रे, क्रेजी किया रे, क्रेजी किया रे, क्रेजी वैरायटी भी है. So you take this and you take any of Kafi or Kafi Sahab's or Sahir Sahab's or Guldar's lyrics, you know. वो अफसाना जिसे अंजाम देना न हो मुमकिन, उसे खूबसूरत मोड़ पे ला के छोड़ना अच्छा. अब मतलब क्या डेलिकेसी है थॉट्स में. वो आई एम नॉट सेइंग कि वी हैव टू रिपीट, वी हैव टू एक्सटेंड, बट कहीं तो दिखे कुछ खूबसूरती, ब्यूटी, डेलिकेसी. एंड यूल ऑलवेज रिमेंबर कि जहाँ भी खूबसूरती आती है, जहाँ भी दिल को टच करने वाली चीज़ आती है, वही चीज़ याद रहता है. विच इज़ वाई वी आर हैविंग रीमिक्सेस टुडे. Every song, every film that is being released, every third film that is being released on OTT will have an R.D. Burman recreation, some old songs. शाहरुख खान जवान हो, ये हो, वो हो, हेमंत कुमार के गाने चल रहे हैं. ये क्या है, मतलब क्या गाने हैं नहीं, बना नहीं सकते हम? कौन से बना सकते हैं? अरिजीत आज का स्टार है, गा सकता है और गाता है और ज़बरदस्त फॉलोइंग है, मगर उसको भी गाने नहीं मिल रहे हैं ना. मतलब एनी आर्टिस्ट क्रेव्स कि मुझे गाना दो, यू नो. एक जावेद अली के साथ हम कुछ रिकॉर्ड कर रहे थे, बहुत 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 खूबसूरत गाना था, उसको पैसे ज़्यादा नहीं मिल रहे थे उसमें, पर बोला कि यार ऐसे गाने मुझे मिले, मैं गाऊंगा. पैसा इज नॉट द थिंग. They all anyway make money if the song becomes a hit on the stage, you know. So they make their money if the song becomes a hit in the film by performing on stage. तो ये सब तो I feel that जिम्मेदारी हमारी है, and there has to be foundations
cultural foundations who has to support this, where there's no sessions, there's no other than fan clubs. There's no session. That fan club should become a much larger canvas, and people should be हम और आप जो भी पुराने गाने या नए गाने सुनते हैं, जितनी बार हम सुनते हैं उतना समझ आता है. ऐसा नहीं है कि लिरिक्स एक बार समझ में आ गया तो बस. यू सी द लेयर्स, यू नो, एंड सिंपल लिरिक्स, बट उसमें जैसी खूबसूरती हम ढूंढते हैं. कजरारे कजरारे, वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग्स ऑफ रिसेंट टाइम्स, कॉल्ड एन आइटम सॉन्ग, बट वन ऑफ द मोस्ट डिलाइटफुल लिरिक्स, यू नो. तेरी बातों में किमाम की खुशबू है, तेरा आना भी गर्मियों की लू है. क्या बढ़िया इमेजेस हैं. अब किमाम कोई नहीं समझेगा यहाँ पे, बिकॉज इट्स अ यूपी का इमेज, बट दैट्स आवर अपॉर्चुनिटी टू लर्न कल्चरल थिंग्स. किमाम क्या होता है समझे तो थोड़ा. So it's a beautiful analogy also if you go to see, because जिस जो आपने एक बात कही कि लिरिक्स के माध्यम से आप उनको एंटरटेनमेंट भी दे रहे हो, प्लस आप एक तरह से एक इन्फॉर्मेशन, एक नॉलेज भी दे रहे हो. यू कनेक्टेड देम टू द कल्चरल हिस्ट्री एंड लॉट ऑफ थिंग्स. तो कितनी बार हम जब छोटे में सुनते थे, कुछ गाने समझ नहीं आते थे तो हम ढूंढते थे इस वर्ड का मीनिंग क्या है. तो इसी बहाने यू यूज्ड टू, इट वाज थॉट प्रोवोकिंग, इट यूज्ड टू यू नो एग पीपल ऑन कि हम जाने ये जो लाइन बोली है इसका मतलब क्या है ना. जैसे मैं जब बहुत छोटा था ना, एक गाना था, समझौता गमों से कर लो. एक चीज मैं कहना चाहूंगा, देयर वाज अ फिल्म दैट आई मेड ऑन जगजीत सिंह, which was talking about what Jagjit did to Ghalib. So Ghalib was a classical poet, forgotten, but गुलजार साहब, जगजीत साहब, ये में इन लोगों ने जो कंपोज किया और बनाया, तो गालिब के वर्ड्स थे बाजी अतफाल, खुल्द. अब जो भी सुनते थे उसको 4 बार सुनते थे, समझ में नहीं आता था. 5वां बार लोग कोशिश करते थे समझने की खुल्द होता क्या है. तो जब समझ में आया तो मेरी हाइट बढ़ी, थोड़ी मेरी अंडरस्टैंडिंग बढ़ी. तो ऐसे करके बढ़ता है. अगर कहीं पे हम कुछ, मैं बता रहा था कि मैं जब ऑडियंस में होता हूँ, कोई पैनल पे बात कर रहा होता है, कोई एक इंटरेस्टिंग बुक मेंशन करता है, तो मैं वहीं पे नोट करता हूँ, फिर उसको गूगल करता हूँ, अमेजोन पे डिपेंड. आजकल तो गूगल का ज़माना आ गया है. मतलब एनीथिंग यू कैन फाइंड आउट अबाउट एनीथिंग इफ योर इंटरेस्ट टेक्स यू देयर. So how to create interest is the most important thing, and unless you expose them to the songs, ये नहीं होता है. In fact, एक और line, there's a very interesting workshop that I am helping a friend of mine do. He's doing it big time. Corporates में he's taking up meaningful and sensitive lyrics which apply to your corporate situations, snags, problems, himmat, disillusionment, anything, expectation management, ये सब. तो गाने तो वो बहुत अच्छा सेशन हो जाता है कि 6 घंटे का सेशन होता है. लोगों से गाने गवाते हैं हम उसमें, बिकॉज कई सारे क्लोजेटेड सिंगर्स हैं हर एक कंपनी में. तो या जिनको नहीं भी आता है उनको भी गाना अच्छा लगता है, और क्या जाता है, गाओ. तो मस्ती होती है, और उस तरह से देयर इन्वॉल्वमेंट इंक्रीजेस एंड देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ songs go one notch. Why can't we do that same thing with in curriculum? And there are inspiring metaphors actually, if you go to see. एक तरह से inspire भी करेंगे, and they're actually real life metaphors. Because like I said, हम बचपन से we've been listening to, we've actually, we are lucky that we've been privy and to such wonderful films and songs and stuff. Right now the generation is exposed to a lot of stuff which is, like you rightly said, reel based, 60 seconds of content. तो उसमें mostly it's all filtered. जो आपका जिसे हम hook line बोलते हैं वही बस रह जाता है, उसी को repeat होता है and stuff like that. Even from the West, if we have, there's so many artists, like Nicki Minaj, and you have Post Malone and stuff like that, who's right now quite big. If you see, there's a lot of expletives in the kind of rap format or the song that they sing, or there's a lot of profanity
तो which now has become like the norm. People think अरे ठीक है तो ठीक to abuse in a song, to use profanities is the rule now, is okay. वही चीज फिर हमारे हिंदी गानों में आ रही है. ममता का दिमाग चल रहा है कि इंस्टाग्राम जनरेशन को हम कैसे exactly. I know. अब आप माइंड रीडिंग भी सीख गए, नॉट बैड. बिकॉज ही ब्रॉट इन कि आज की जनरेशन 60 सेकेंड ऑफ एंगेजमेंट ऑन रील्स उसी पे जुटी हुई है. बिल्कुल. तो उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं हम. लेकिन and let's face that is reality. That is a fact, yeah. लेकिन अब तक का जो सफर है और ट्रांसफॉर्मेशन इज द नॉर्म, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, वी कांट डिनाई दैट. तो अब इस चेंजिंग सिनेरियो में इफ देयर इज वन टेक अवे फॉर ऑल ऑफ अस हु कैन मेक अ डिफरेंस, लाइक आई एम श्योर हम लोग जो सब बैठे हैं यहाँ पे, वी आर ट्राइंग टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ लिरिक्स एंड द काइंड ऑफ म्यूजिक दैट इज कमिंग. बट अच्छा भी है बुरा भी है. तो अगर आजकल के other than Gulzar Saab and Javed ji, who are the other names that you think should be creating more content and impacting the next generation, और किस तरह के lyrics अच्छे हैं? If you could give us a few names. ये सब इरशाद कामिल, स्वानंद किरकिरे, अमिताभ भट्टाचार्य, ये सभी बहुत ही अच्छे लिखने वाले हैं, बहुत अच्छे. and they are the next generation masters, believe me. मतलब 10 साल के बाद शायद उनका मतलब if not already, I think already they are masters. बट इन सब का वही स्ट्रेचर होगा 10 साल के बाद जो आज जावेद अख्तर साहब का या गुलजार साहब का है. बट मेरा कंसर्न्स है कि जो चीज़ हम कॉरपोरेट में कर पा रहे हैं उनसे लाखों लाख रुपया ले करके और उनको एक फन एन्जॉयमेंट के साथ साथ इंसाइट और करेज और नई सोच दे करके, why can't that be done at university levels, college levels, school levels, music club levels? Because I can highlight that to you, because language is never taken as a skill in any stage of curriculum. So अगर language को skill की तरह develop किया जाए, do हिंदी का propagation, हाँ. So probably it might be addressed. बट जाते जाते राहुल जी, भाषा का इस पे मैं बोलना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि ऑल्दो इट्स नॉट टेकन अप एज अ वेरी सीरियस थिंग, लेकिन भाषा से तो पहचान है ना. और आज अगर आप भाषा ही ठीक से नहीं बोलोगे, वो थोड़ी सी विकृत हो जाए अगर, तो आने आप यू आर स्प्रेडिंग दैट अहेड ऑल्सो ना. तो आई थिंक राइटफुली हाउ ब्रह्मानंद जी सेड कि म्यूजिक एंड लिरिक्स, सो द प्रोपगेशन ऑफ द राइट ग्रामर, द राइट काइंड ऑफ राइटिंग, you know, is very, जैसे रील्स भी अगर बनाते हैं तो why not कंटेंट क्रिएटर्स तो सब हैं. तो कंटेंट ऐसा जरूरी नहीं है कि हम हर गाना हैज टू बी लाइक एन आइटम सॉन्ग, लाइक यू सेड कुर्ता पजामा काला काला. सेंसिटिव 60 सेकंड में बहुत इंटरेस्टिंग लाइंस भी बोली जा सकती हैं एज रील्स, उसको प्रमोट किया जा सकता है बनाना. एंड एक चीज़ जो मुझे गुलजार साहब का फॉर एग्जांपल अच्छा लगता है वो ये है कि ही इज कॉन्फिडेंटली यूजिंग इमेजेस which are rural images, okay, जहाँ पड़ोसी के चूल्हे से आग ले ले ना, गैस में नहीं होता है वो, है पड़ोसी के चूल्हे से आग ले ले, तो वहाँ पे होता है कि वो उपले लगाए जाते हैं, फिर लकड़ी दिया जाता है, तो वो आग लगने में 10 मिनट लगता है, 5 मिनट लगता है टू गेट फुल फ्लेम. पहले धुआं होता है, फिर जा करके वो लहराता है. तो these are very nice images. It takes us to our roots, it expands our thinking, it ventilates our thinking. एक फिल्म जो हमने बनाया था called Riding on Sunbeam, which has the non-touristy India over 2 hours. It's 1 hour 45 minutes. जहाँ भी हमने दिखाया है, it contains some 7 or 8 stories of how people live in non-touristy India, interiors. And अर्बन ऑडियंस जब देखती है तो बोलती है कि ये हमारा इंडिया है, पता ही नहीं है. तो आई थिंक व्हाट कॉन्टेक्स्ट वी लिव इन, हम हमारे वी हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन व्हाट आवर फादर्स एंड व्हाट आवर ग्रैंडफादर्स एक्सपीरियंस्ड दैट वर्ल्ड. हमारा भी तो उतना ही डिस्टेंस था अपने पिताजी के ज़माने से और दादाजी के ज़माने से. तो सेम थिंग अगर क्यूरियोसिटी हो तो सेम थिंग यंगस्टर्स में होगा. एंड क्यूरियोसिटी इज समथिंग दैट एंश्योर्स ग्रोथ एंड लर्निंग. जिस तरह संकल्प से सृष्टि है, मैं समझता हूँ कि उसी तरह जिज्ञासा से ज्ञान है.
वाह, बहुत सुंदर। तो वो जिज्ञासा जरूर। अच्छा, आई वुड लाइक टू कंक्लूड दिस सेशन नाउ एंड राहुल जी आपके प्रेजेंटेशन के बिना तो होगी नहीं, तो थोड़ा सा गुनगुना दीजिए हमारे लिए और जो भी गुनगुना सिंसे मैं आपको 2 पंक्तियां कहूँगा जो कि रिसेंटली कुछ महीने पहले जावेद अख्तर साहब ने एक गाने का लॉन्च किया था जो कि मेरे द्वारा लिखा हुआ था। इट वाज अ सॉन्ग ऑन वर्ल्ड पीस। तो स्टेज पर सबके सामने ऐसे ही इम्प्रॉम्प्टू 2 पंक्तियां मैंने कही थी एंड दैट्स डेडिकेटेड टू द करंट सिनेरियो, जो मौजूदा हालात इस तरह दुनिया में जो हो रहे हैं, यू नो, अनरेस्ट एंड ऑल दैट स्टफ, कि जिस तरह फूलों की खुशबू की कोई रियासत नहीं होती, जिस तरह फूलों की खुशबू की कोई रियासत नहीं होती, सच्ची इंसानियत और भाईचारे में कभी सियासत नहीं होती। This is a very pertinent message also to all the people in the world. कि if you want to spread peace, love and happiness, kick politics out of your relation. That's the whole thing. Politics has no space in relationship. No space in relationships. Yeah. In this session, I'm not taking any question answers for 2 reasons. Because this session means to question you all what type of lyrics you should be listening and what type of songs you should be hearing. So if there are any feedbacks, anything, you have 2 gentlemen here. Do connect with them on their social media handles as well as personally while he's here to understand and see where you can make a difference and are we on the right track for putting this question out to you all. See, I would also like to say feel free to listen to whatever you want. That's okay. It's what you take with you, take home with you. It's what you keep in your memory. It's what you savor. जब आप फिल्म देखते हो तो पूरी फिल्म के सभी डायलॉग्स नहीं याद रहते आपको, लेकिन आप खुद चुन के कुछ अच्छे नायाब डायलॉग्स अपने जहन में रखते हो। सी फिल्म अप्रिसिएशन, म्यूजिक अप्रिसिएशन या कोई भी एक जो विधा है उसका अप्रिसिएशन, it doesn't happen overnight. You have to invest time, you have to invest curiosity, you have to invest your passion and interest in that. तो फिर थोड़े आज के ही बॉम्बे टाइम्स में मैं देख रहा था 5-7 बड़े बड़े म्यूजिशियंस के पिक्चर्स थे अबाउट इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड दे स्पोक अबाउट कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में कैसे उनको इंटरेस्ट आया और कैसे यंगस्टर्स को इंटरेस्ट आ रहा है या आ सकता है। तो हम सब जो भी यहाँ पे अगर 10 लोग भी हैं जो क्लासिकल म्यूज़िक एंजॉय करते हैं, तो ओवरनाइट तो शुरू नहीं हुआ। वो 10 चीज़ें उसके बारे में समझनी पड़ी। कहीं ना कहीं अच्छा लगता था, मगर 10 चीज़ें जब समझ में आई तो और अच्छा लगने लगा, और अच्छा लगने लगा तो और सुनने लगे, और सुनने लगे तो और समझ में आने लगा। सो इट्स अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ऑफ एनी अप्रिसिएशन. So you have to start by investing time, effort, energy, passion, interest, and then it grows organically. Wonderfully said. Thank you so much. Yes, and we also need more यथा कथा. साल में 2 बार होना चाहिए और लोगों को बुलाओ इस तरह के सेशंस, थोड़े उनको एक्सपोज करो जिससे कि एक सोच कम से कम उस तरफ आए. यस, I think that